Hello students, in my last lecture I explained you sums of miscellaneous exercise of chapter 4 from question number 1 to 10. Today I have taken question number 11. इसमें हमें with using the properties we have to prove that this determinant is equal to this. अब अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखें, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस गामा, ये फैक्टर्स हैं. तो आई वुड ट्राई टू गेट दीज फैक्टर्स बाय मेकिंग द मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस. क्या हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस करें, क्या हम प्रॉपर्टीज लगाएं. आप ये देखिए कि अगर मुझे बीटा माइनस गामा चाहिए, तो बीटा माइनस गामा दिस आई कैन ऑब्टेन. आई नीड गामा माइनस अल्फा. यहाँ तक पहले मैं दोनों देख लिया, तो आई कैन मेक द ट्रांसफॉर्मेशंस इन रो. तो R2 कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1 एंड R3 can be written as R3 minus R1. So I can obtain these two factors. First row में मैंने कोई change नहीं किया, so I will write it as it is alpha square beta plus L gamma. Now this minus this, beta minus alpha. This minus this, beta square minus alpha square, beta square minus alpha square. This minus this, तो इसमें से गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बचेगा. Now from here gamma minus alpha, from here gamma square minus alpha square, from here when we cancel then beta will be cancelled, alpha minus gamma. Okay. अब from second row I can take out beta minus alpha common. यहाँ पर beta minus alpha, beta plus alpha और इसमें से minus common ले लेंगे, तो ये भी beta minus alpha हो गया. अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये भी माइनस अल्फा प्लस बीटा बन गया. यहाँ भी माइनस देखिए, यहाँ गामा माइनस अल्फा कॉमन है, ये इसके भी फैक्टर्स गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा बन जाएंगे. और इधर अल्फा माइनस गामा है, तो यू टेक नेगेटिव साइन कॉमन, तो दिस विल आल्सो बिकम गामा माइनस अल्फा. नाउ टेकिंग बीटा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम R2 and R3 respectively. So what it would become, beta minus alpha is common, gamma minus alpha is common. So what will lift, because there is no change in first row, so we will write down it as it is. Second row में यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स थे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के फैक्टर्स थे बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा. बीटा माइनस अल्फा we have taken common, so we are left with beta plus alpha, and from here minus 1 is common. Likewise here also. Now next is I can see if I, because these two are same, if I add subtract these two, then I can write R3 is R3 minus R2, or I can take R2 is R2 minus R1. या तो R2 minus R1 ले लीजिए, या फिर ऐसे कीजिए. तो I have done it in this way. So beta minus alpha and gamma minus alpha is common. So what is left, because there is no transformation in the first and the second row, so we will write down these two rows as it is. So this is this minus this 0, this minus this is gamma minus beta. Okay, gamma alpha is common, gamma minus beta, and this is 0. Okay. Now two rows have been obtained. I can take one more 0 if I add these two, column 1, और क्योंकि ये दोनों, ये इस कॉलम में, ये इस कॉलम में, so I need to add these columns. देखो इससे इन जीरोस को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ रहा है. अगर आप C1 is C1 plus C3 करें तो 0 plus 0 ये आपका ऐसे ही आएगा. तो we can do it in this way. So I can take C1 is C1 plus C3. So it would become beta minus alpha, gamma minus alpha. C1 is this plus this, alpha plus beta plus gamma. This is 1 minus 1 0, this is 0 plus 0 0. This is alpha square, because there is no transformation in the second and the third row, so these two will remain as it is. चलिए अब तो 3 zeros आ गए, और भी आसान हो गया हमारे लिए. Now we can open it. प्रॉपर्टीज हमने लगा ली, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हम जितने लेके आ सकते थे. वी ऑब्टेन्ड दीज 3 zeros हियर. नाउ वी कैन ओपन बाय एक्सपेंडिंग. फर्स्ट रो एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा. अब इसको ओपन करूँगी तो दिस alpha plus beta plus gamma along the first row I'm expanding. This into this is 0.
माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका गामा माइनस बीटा। ओके, नाउ माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, जीरो आ गया। अब इसको करेंगे तो ये भी जीरो आ रहा है, बीटा प्लस गामा, इस क्योंकि ये जो है इस रो और कॉलम में है, छोड़ दो इसको, इनको दोनों को सिंप्लीफाई करो, जीरो आ रहा है ये भी। ओके, अब इसके बाद आप इसको ओपन कीजिए, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा into gamma minus beta, and all this is zero. So this is what we have to obtain. हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इसको इसके प्रूफ करना है, और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि आई कैन स्प्लिट इट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप थर्ड कॉलम में जो टर्म्स दी हुई हैं आपको, उनको स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये हमने अलग ले लिया। अब फर्स्ट और सेकंड रो सॉरी कॉलम्स आप ऐसे ही लिखिए, एंड इन थर्ड कॉलम यू राइट दिस पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। नाउ व्हाटएवर इज कॉमन विल टेक इट आउट कॉमन। देखिए यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट रो में से आपका x कॉमन है, सेकंड रो में से y कॉमन है, थर्ड रो में से z कॉमन है, एंड थर्ड कॉलम में से p भी कॉमन है। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट 1 है एंड दिस इज डिटर्मिनेंट 2। तो हम लिखेंगे टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम r1 r2 and r3 respectively and p from c3 in डिटर्मिनेंट 2। ठीक है, आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिखेंगे, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट से यहाँ कॉमन निकाला x, सेकेंड में से y z, और यहाँ से निकाला p, तो ये p x y z हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा 1x x स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ से x कॉमन निकल चुका है, तो 1x x स्क्वायर आएगा। क्यों यहाँ पर p नहीं आएगा? क्योंकि p मैंने कॉमन निकाल लिया, तो p तो लिखना नहीं। फिर यहाँ से y कॉमन निकल गया 1y y स्क्वायर, यहाँ से z निकला 1z z स्क्वायर। ओके, आप ये देखिए कि अब इसमें एलिमेंट्स तो कॉलम के सेम है, बट दिस नीड्स टू बी रीअरेंज्ड। ठीक है, just to make these two determinants equal, I need to make the changes either in the columns of this determinant or in this. So I am going to make the changes in this one I am making. चलिए इसमें बना लेते हैं, यहाँ 1 लेके आइए पहले, because 1 is in the first column, तो मैं इसमें ऐसे कर रही हूँ, this is determinant 1 plus p x y z determinant 2, I am writing it. So now taking यहाँ पर C1 and C3 को I am interchanging in determinant 1. In determinant 1, whatever I am making the changes, I am making it in the first determinant. 1 1 1. X square y square z square will remain as it is, and this is x y z. These two are interchanged. Remaining will be left written as it is. Okay, 1 1 1 x y z. लेकिन जब हम ऐसे इंटरचेंज करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, your sign changes, sign of the determinant changes, so that's why I have changed this determinant sign. Again now I am making the changes in this, क्योंकि अब मुझे यहाँ ये z square चाहिए और इधर ये, तो C2 and C3 in determinant 1. Again one more negative sign will come, तो -1 square हो जाएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में देयर इज नो चेंज, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर। ओके, नाउ प्लस p x y z, and again this is same, 1 1 1 x y z, x square y square and z square. Now students, you can see these two are identical, same, so I can take it out common. So 1 1 1 x y z, x square y square z square is common. Now what's left here? 1, because -1 square is 1, plus p x y z. Okay, now I need to make the transformations in this determinant to get it, because the 1 1 1 is in the column, so transformations will be in the second and third row.
तो नाउ पी R2 इज R2 minus R1 and R3 is R3 minus R1. Now do it complete yourself by making these transformations. हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए पहले हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है। पहले मैंने ना क्या किया कि R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखने की कोशिश की। तो इसमें दिस प्लस दिस करती हूँ तो 5a माइनस बी माइनस सी बन रहा है और इधर 5b माइनस ए माइनस सी बन रहा है। तो दीज आर नॉट सेम, तो इसलिए मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़ दिया। नाउ आई ट्राई टू ऐड ऑल द 3 कॉलम्स। पहले 3 रोज को देखा, नहीं बनी बात, अब 3 कॉलम्स को जोड़ के देख रही हूँ क्योंकि मुझे इधर a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, इसलिए ये तो मुझे पता चल रहा है कि कॉलम्स या रोज को ऐड करना आपस में। तो मैंने जब इन तीनों को ऐड किया तो आई एम गेटिंग a प्लस बी प्लस सी, हियर ऑल्सो आई एम गेटिंग a प्लस बी प्लस सी and here also I am getting a plus b plus c and remaining these 2 columns will remain as it is. Okay, अब आपका फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन निकल रहा है? फर्स्ट कॉलम में से आपके पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है, उसको आप बाहर निकाल देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, मेरे पास तो ऑप्शन है आई कैन रब इट, लेकिन आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा। नाउ आई कैन सी दिस वन इज इन द फर्स्ट कॉलम, तो रो में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी R2 इज R2 माइनस R1 एंड R3 इज R3 माइनस R1। ओके, a प्लस बी प्लस सी इज कॉमन। फर्स्ट रो में हमारा कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमने उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की। दिस माइनस दिस इज 0, दिस माइनस दिस 3b माइनस a, 3b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड दिस इज माइनस b। तो क्या बन जाएगा ये आपका a प्लस 2b। लाइकवाइज माइनस b प्लस c माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस a माइनस c। This is cancel, so this is a minus b. Okay, now next is your this is R3 minus R1, this minus this minus this, तो minus c plus b plus a minus b, ये कैंसिल हो गया, a minus c बचा आपके पास। अब इसको करेंगे तो 3c माइनस माइनस ये प्लस हो गया एंड दिस इज a plus 2c। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। ओके, आप इसके बाद 2 जीरोस तो आपके पास आ गई है। ठीक है, आप ओपन कर लीजिए अब इसको। ठीक है ना, अब आप इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पर एक्सपैंड कर लीजिए इसको अलोंग फर्स्ट रो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आपने ओपन किया तो दिस इंटू दिस a प्लस 2c इंटू a प्लस 2b माइनस a माइनस c a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया a प्लस बी प्लस सी। जब हमने इसको एक्सपैंड करने के बाद ये लिखा है, देन विल मल्टीप्लाई दीज टू और इनके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दिस 3 इज कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हेंस इट इज डन। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपका 14th, इसमें हमें इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है। देखो अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई भी एक रो में यहाँ पर 1 है और इधर 2 3, तो हमें बहुत इजी होता है 1 इसको जीरोस बनाना। तो कैसे बनाते हैं, देखो ये है R2 या R2 में 2 है, पहले तो R2 लीजिए, R2 में 2 है, यू वांट टू गेट 0 हियर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 1 वी विल गेट 0। देखो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से माइनस करते हैं, अपने आप 0 बन गया, तो माइनस 2 टाइम्स R2 हो गया। अब यहाँ 0 बनाना भी बहुत आसान है, कैसे? R3 इज R3 में क्या है 3 में से माइनस 3 कर देंगे, यानी कि माइनस 3 टाइम्स R1 कर देंगे। ओनली 3 नहीं लिख सकते, किसी स्केलर को रो में से हम नहीं माइनस कर सकते। We need to multiply that scalar with any row only, then we can subtract 2 rows. ये नहीं कि आप 3 को माइनस कर दो, नो, you can't do it. ठीक है, तो आप ये फर्स्ट रो में there is no transformation, तो write it as it is. अब यहाँ है this minus 2 times this 0, this minus 2 times this, तो 3 plus 2p में से minus 2 minus 2p, तो ये हो गया आपका कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, 3 minus 2 बच गया 1, ओके गुड। अब this minus 2 times this, तो 4 plus 3p plus 2q में से minus 2 minus 2p minus 2q, तो ये हो गया 4 minus 2 is 2, 3p minus 2p is p, 2q minus 2q कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब this minus 3 times this तो 0, this minus 3 times this, यानी 6 plus 3p में से 3 times minus 3 minus 3p,
ये कैंसिल 6 माइनस 3 इज 3. अब इसके बाद आप दिस माइनस 3 टाइम्स दिस, तो 10 plus 6p सॉरी 10 plus 6p plus 3q minus 3 times of this minus 3 minus 3p minus 3q. This is cancel. 10 minus 3 is 7. 6p minus 3p is plus 3p. ओके, आ गया जी आपके पास. अब इसके बाद आप इसको भी वैसे जीरो बना सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 है. जब जैसे ही ऊपर 1 होता है, जैसे ही ऊपर 1 होता है, जीरो बनाना कोई मुश्किल नहीं है. सो आई कैन गेट 1 more जीरो. मैं यहाँ से जीरो लेके आ सकती हूँ अगर लेके आना चाहूँ. अगर आप वैसे करना चाहते हैं मल्टीप्लाई, आप एक्सपेंड कर लो. 2 जीरो तो हमारे आ ही गए हैं. चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं इसको. अलॉन्ग फर्स्ट रो ही कर रही हूँ. दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस. ओके, सो दिस इज 7 plus 3p minus 6 minus 3p. ओके, फिर इसको करेंगे 1 plus p को करेंगे तो दिस इंटू जीरो, दिस इंटू जीरो, तो ये तो आ गया आपका जीरो. इसको करने की जरूरत नहीं. अब इसको करेंगे तो दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, ये भी जीरो आ गया. ओके, तो आपके पास क्या बचा 1. 7 minus 6 is 1. 3p कैंसिल. दिस इज hence it is proved. हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने लिया क्वेश्चन नंबर 15. इसमें इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वी हैव टू प्रूव एंड हियर द terms which are involved, expressions, these are trigonometric expressions which are involved. तो हमें ये trigonometric properties आनी चाहिए वहाँ पर, इसके बगैर हमारी बात नहीं बनेगी. तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को I have written as it is. I have applied the identity of cos A plus B. Cos A plus B क्या होता है? Cos A cos B minus sin A sin B. So I have applied this identity here in all these three. ठीक है, सब में ये लगा दी. Now I'm going to split it. ठीक है, इसको split करने जा रही हूँ. तो हमने देखो इसको स्प्लिट किया, ये एज इट इज लिखा यहाँ पर, फिर दोबारा इन दो टर्म्स को लिखा और ये माइनस वाली ये टर्म्स यहाँ पर लिख दी. तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. अब डेल्टा 1 में आई कैन सी दिस कॉस अल्फा इज कॉमन, सॉरी कॉस डेल्टा इज कॉमन फ्रॉम द थर्ड कॉलम एंड आई कैन सी हियर माइनस साइन डेल्टा इज कॉमन फ्रॉम द सेकेंड. ओके, हाँ जी, you can see if we take out this cos delta common from here, what is left? This. And if we take out this sin delta and this minus sin common from here, what is left? This. Now you can see clearly that these two columns are identical. C2 and C3 are identical in delta 1 and this C1 and C3. C1 and C3 are identical in delta 2. And we know when any two rows or columns are identical, then what is the value of the determinant? 0. So this is equal to cos delta into 0 minus sin delta into 0. So this is equal to 0 minus 0, that is 0 equal to your right hand side है. हाँ जी, इस क्वेश्चन में दिया है कि A, B and C are in A, B, then you are to evaluate it by using the properties. अब A, B, C are in A, B, यानी 3 consecutive terms है, तो second term minus first term is equal to third minus second, यानी common difference इसका same होगा. या हम इसको डायरेक्ट भी लिख लेते हैं, twice of the middle term is equal to sum of the extreme terms. ये आ गया आपके पास. अब ये देखिए, ये हमारे पास इसका हमने यूज करना है. ठीक है, अब सॉल्व हमें इसको करना है. ठीक, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है. तो एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो यहाँ 2x प्लस 6 बन रहा है, यहाँ 2x प्लस 8 बन रहा है, यहाँ 2x प्लस 2 टाइम्स और प्लस 3 बन रहा है, जो कि आपका डबल ऑफ दिस है. अगर हम ये देखें, अगर मैं R1 और R2 में कोई चेंज नहीं कर रही, R3 इज R3 प्लस R1 लिख रही हूँ, तो या फिर R1 इज R1 प्लस R3, जैसा आप लिखना चाहें. तो देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट टर्म. So first row, sorry, there is no change in the second row, but this is R3 is this plus this, यानी 2x plus 6, this is 2x plus 8 and this is 2x plus 2 times of A plus C. ठीक है, now A plus C can be replaced by 2B. ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन निकालिए सब में से. Now using 1
I can write it. This is determinant. X plus 2, x plus 3, x plus 2a, x plus 3, x plus 4, x plus 2b. This is 2 times x plus 3. This is 2 times x plus 4. And from here 2 is common. x plus a plus c की जगह अब हमने क्या लिख देना है, 2b. 2 हमने इन दोनों का कॉमन निकाल लिया. x प्लस a प्लस c था और a प्लस c की जगह हमने 2b रख दिया यहाँ पर. ठीक है. 2 इज कॉमन फ्रॉम हियर. ओके, 2 इज कॉमन, निकाल दीजिए 2 को कॉमन, यहाँ आ गया. अब ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, आपका R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल. तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया आपका जी, 0. तो आंसर आ गया आपके पास 0 डिटर्मिनेंट. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. तो इसमें आपको मैट्रिक्स एक गिवन है एंड यू हैव बीन गिवन दिस कंडीशन कि जो आपका थीटा दैट लाइज दैट इज फ्रॉम 0 to 2 pi. 0 to 2 pi है एंड यू आर टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस A डिटर्मिनेंट. तो मैंने A डिटर्मिनेंट बाय एक्सपैंडिंग इट along the first row and try to got. वैसे तो हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से अगर करना चाहें. वैसे तो मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपैंड किया था, वो भी कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन अगर आप इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी करना चाहते हैं तो R1 इज R1 प्लस R2 में मुझे डायरेक्ट 2 zeros मिल रहे हैं. तो A डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा दिस इनटू दिस प्लस दिस इज 0, this plus this is 0, this is 2, and second and third row में we have made no changes, no transformation is there. So now determinant of this will be ये 0 ये 0, 0 plus 0, ये बचा आपके पास 2, and this is minus minus plus sin square theta plus 1. So your A determinant is 2 times sin square theta plus 1. This is now we have to find out the range of this. इसकी रेंज क्या होगी. देखो हमें दिया हुआ है कि थीटा जो है that lies between 0 to 2 pi. अगर मैं साइन थीटा देखूं, ठीक है, तो आपका जो थीटा ये 2 pi है. अगर साइन थीटा मैं यहाँ पर देखूं तो साइन थीटा 0 से 2 pi के बीच में मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू उसकी -1 जा रही है. ठीक है, 0 से 2 pi में. तो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा है तो मैं इसकी रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे निकालते हैं उसके हिसाब से कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज फ्रॉम -1 to 1. ये देखिए -1 to 1, मिनिमम इज -1 एंड मैक्सिमम इज +1. हाँ, तू भी देख लेता क्या. ओके, सो नाउ दिस इज अ स्क्वायर. व्हेन आई टेक द स्क्वायर only the positive values will be considered, only positive, यानी कि 0 से ये रह जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा, नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा. तो 0 से लेकर अगर हम स्क्वायर कर देते हैं इसको, सो दिस इज 0 to 1 रह जाएगा. ठीक है, स्क्वायर करने पर. अब हमने क्या करना है इसमें +1. सो एडिंग 1 ऑन ऑल दिस इज साइन स्क्वायर थीटा +1 एंड दिस इज 1 + 1. अभी भी वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड दिस डिटर्मिनेंट, सो मल्टीप्लाइंग विथ 2. Multiply with 2. This is 1 plus sin square theta. Multiply by 2. This is 2 into 2. So this is your A determinant and this is 4. So what is the range of A determinant? That is 2 to 4 close bracket. So it's done. और जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इसको या तो इसका इक्वल प्रूव करना है. क्या लीजिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस. तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 16 आपके एनसीईआरटी बुक का. तो इसमें देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 1/a है, 1/b है, 1/c है, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा. लेकिन हम इसको बना सकते हैं. देखो अगर मैं इस 1 की जगह a/a लिख दूँ प्लस a, 1/a, 1/a, इसमें इस पूरे में मैं 1/b कर दूँ 1 की जगह. सॉरी, ये a/a, ये a/a. इसको मैं 1 जहाँ भी उसको b/b कर दूँ, b/b प्लस b, फिर b/b. जहां 1 है थर्ड कॉलम में c/c लिख दो, क्योंकि c/c मींस 1, b/b मींस 1, a/a मींस 1. ठीक है. अब आपने क्या करना है, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम, कहां से निकालेंगे,
C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। चलिए ABC कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा बेटा? यहाँ बचा A कॉमन निकला 1/A प्लस 1। यहाँ 1/A 1/A, इधर 1/B प्लस 1/B। यहाँ से निकला C 1/C यहाँ से C निकल गया। देखो इसको ऑन कर लिख लो तो ज़्यादा सब। A निकला तो 1/A प्लस 1। यहाँ से ऐसे C निकला 1/C यहाँ पर 1/C प्लस 1। चलो ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1। ऐसे इसमें तो मैं अगली ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रही हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रही हूँ। चलिए ABC तो बाहर रहा, ये हो गया 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1। इधर भी 1/A, इसको ऐड करो 1/B प्लस 1/C प्लस 1। ऐसे इसमें 1/A 1/B 1/C प्लस 1। ये हो रहा है क्या? सेकेंड रो कॉलम में देर इज नो चेंज, इन दिस थर्ड कॉलम ऑल्सो देर इज नो चेंज। ओके, फ्रॉम हियर व्हाट इज कॉमन? दैट इज योर दिस वन इज कॉमन, टेक इट आउट कॉमन, निकाल दो इसको, कॉमन निकाल दो। तो यहाँ 1 बच जाएगा और ये 1 प्लस 1/A 1/B 1/C कॉमन आ गया हमारा, ठीक है। और देखिए नाउ 1 इज इन द फर्स्ट कॉलम, तो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इन द सेकेंड एंड द थर्ड रो करके, रो में ट्रांसफॉर्मेशन करके हम 2 zeros लेके आ सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ 0 हो गया। इसमें 1/C प्लस 1 माइनस 1/B, और इसमें 0, और इसमें फिर 0, और इसमें दिस इज 0 एंड दिस इज 1/C प्लस 1 माइनस 1/C। सो दिस इज 1 लेफ्ट हियर, ओके। जी ये हमने कुछ गलत लिख लिया, यहाँ पर हमारा ये 1/B था, 1/B था, ठीक है। चलो R2 इज R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ ये 1 रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, अलॉन्ग द फर्स्ट रो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 1 × 1 माइनस 0, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ABC 1/A 1/B प्लस 1/C × 1। तो ये राइट हैंड साइड ये वाली आ गई। लेकिन अगर ये लेके आना है तो कैसे करेंगे? इसका एलसीएम ले लीजिए आप, ABC आएगा। यहाँ पर ऊपर अगर एलसीएम ABC है तो ABC पूरा, इसको डिवाइड करेंगे तो BC बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो AC बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो AB बचेगा। दिस इज कैंसिल, तो ABC प्लस AB प्लस BC प्लस C आ गया आपके पास। दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हेंस इट इज डन। Now these were the questions of your NCERT book from your miscellaneous exercise and one example. With this your miscellaneous exercise is over. Now you try more questions of this type in which the determinant is to be found by using the properties only.